Good morning, sir. Good morning. Good morning to all. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. So, Anji, Good morning, sir. good morning. Good morning, sir. Good morning to all. Morning, sir. Good morning, sir. सर जो 12 दिसंबर को टेस्ट हुआ था उसकी हाँ। डेट डिसाइड हुई रीशेड्यूल जो ना था वो तो सब फिर से डिस्टर्ब हो गया ना। एमएसटी के बाद रखना था, अब तो एमएसटी 27 जैन को हो गया। यस सर तो फिर से अब मीटिंग करेंगे। 5 फैकल्टी, एक कॉमन फ्री टाइम मिलने में थोड़ा सा वो सबके टाइम टेबल रहते हैं ना। तो अब छुट्टी लग रही है तो करेंगे मीटिंग, फिर आपको बताते हैं। छुट्टियों में ले लोगे मतलब नहीं, छुट्टी में नहीं लेंगे भाई, छुट्टी को बर्बाद करेंगे। छुट्टी होती है। 10 मिनट का तो टेस्ट है तले दो इसमें क्या जाएगा। छुट्टी मनाओ भाई, वेकेशन बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तभी वेकेशन में फ्रेश होते हैं, तभी तो काम अच्छा होता है फिर। तो देखेंगे, उसको बाद में लेंगे। 3 के बाद ही अब लिया जाएगा कभी भी, बट एडवांस में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके सर ओके, सो कैन यू सी द पीपीटी? Yes, sir. ओके, सो हम कल डिस्कस कर रहे थे, वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग द के मैप थिंग एंड वी हैव डिस्कस्ड फॉर 2 variables. Okay, so we have taken this example and few more examples we have taken. So मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ ये एग्जांपल लेके करना क्या है, ठीक है? प्रोसेस क्या फॉलो करनी है हमें, एंड देन वी विल मूव टू 3 वेरिएबल के मैप एंड देन वी विल सी 1 or 2 एग्जांपल, जो जितना भी टाइम अलाउ करेगा। So the aim of the K map is to obtain a simplified Boolean expression. For example, a Boolean function dependent on x1 and x2 is given by x1 bar x2 bar plus x1 bar x2 plus x1 x2 bar. So this is a canonical SOP. So this is a unique form. So this corresponds to minterm m0. This is m1. This is m2. And we have to simplify this. So this can be done using K-map. So yesterday I have demonstrated 2 ways to simplify it by using Boolean algebra. एक तो था कि यहाँ से x1 बार कॉमन निकाल लो, फिर जो भी बचेगा फिर डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लगा दो। दूसरा है कि इसको 2 बार लिख दो एंड देन टेक द थिंग्स कॉमन एंड देन अप्लाई द Boolean algebra. The result will be x1 bar x2 bar. So same thing we will be doing using K-map. So first we have to identify the minterms involved. So for that you need canonical SOP form. ठीक है, तो कैनोनिकल एसओपी फॉर्म तो आपको में तो एक्सप्रेशन होना ही चाहिए, नहीं है तो उसको कर लेना। ठीक है, आपको तरीका बताया था कैनोनिकल एसओपी में कैसे करना है, उसका तरीका आपको बताया जा चुका है। और भी हम एग्जांपल ले लेंगे जिसमें नहीं होगा, बट हम पहले उसको कैनोनिकल एसओपी में करेंगे सो दैट all the min terms involved are visible. And then what we have to do, we have to fill one, we have to create a K map. So this rows are allocated to x1, this columns vertical wala jo hai, these are columns that are allocated to x2. Okay, x1 can have 2 possible values, 0 and 1. So this row corresponds to x1 equal to 0. The last row corresponds to the value x1 equal to 1. This column corresponds to x2 equal to 0 and this column corresponds to x2 equal to 1. So together they have 4 different values: 0 0 0 1 1 0 1 1. So this is minterm m0, minterm m1, minterm m2 and minterm m3. So what you have to do, you have to first identify the minterms involved. So m0, then m1, then m2. So you have to enter simply 1 in cell 0, cell 1, cell 2. Then yesterday I have told you the concept of adjacent cells. So in this, only this diagonal cells are not adjacent. Otherwise all the cells, these 2 cells are adjacent, these are adjacents. The vertical cells are adjacent except this diagonal one. Okay. So now what you have to do, you have to grouping means ORing. You have to group ones. So wherever one is entered, you have to form a group of them.
for simplification. So this is one, they are in adjacent cell, so you can group them, and you have to write expression for them. Okay, so what will be the expression? The variable which is not changing, so x1 is not changing, x1 is 0. Okay, so you will write x1, since it is 0, so you will add a complement, x1 bar. x2 is 0, x2 is 1, so 0 plus 1 will become 1. तो कल आपको बताया था कि भाई x1 मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो x2 plus x2 bar ये बचेगा ब्रैकेट में. दिस इज द रीजन दैट वी आर सिंपली इग्नोरिंग देम. सो ये सारे रूल्स को आइडेंटिफाई करके के मैप में इस तरह के रूल्स, दूसरे रूल्स बनाए जो सारे बुलियन अलजेब्रा के रूल्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं. तो हमें ये फॉलो करना है, सिंपल रूल्स है. ठीक है, देन यहां पर एक 1 है, अभी इसको ग्रुप नहीं किया है, सो सिंपली ग्रुप देम. ओके, सो दिस कैन बी पेयर्ड विथ 2 एडजेसेंट सेल. ये कॉमन है हॉरिजॉन्टल ग्रुप में भी, वर्टिकल ग्रुप में भी. सो हम किसी भी वेरिएबल को कितनी भी बार ग्रुप कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन राइट a इज इक्वल टू a प्लस a n टाइम्स, ऑल विल गोइंग टू गिव यू वैल्यू a. सो हम इस वजह से एक सेल को कितनी भी दूसरी एडजेसेंट सेल के साथ पेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. सो फॉर दिस ग्रुप we have to see which variable value is not changing. So x2 is not changing and its value is 0. x2 bar, x1 is 0, x1 is 1. Simple, you have to follow simple this rule. ठीक है, ये रूल फॉलो करना है. नेक्स्ट कुछ है, 2⁻³ आ गया. मैंने कल आपको OR गेट के लिए भी एग्जांपल बताया था. आई हैव डेमोंस्ट्रेटेड हाउ द एक्सप्रेशन ऑफ OR गेट, AND गेट एंड अदर थिंग्स कैन बी एक्सप्रेस्ड. ओके, तो अब चलते हैं 8 वेरिएबल्स की तरफ, और ज्यादा क्लियर होगा कि एक्चुअल में करना क्या है. यहाँ तो बहुत छोटा है, 4 ही ऑप्शन है बस. तो 8 वेरिएबल्स पे, 3 वेरिएबल्स पे चलते हैं एंड इसके थ्रू बुलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है, तो 2 वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट भी और क्लियर होगा. So now coming to 3 variable. So for 3 variable, 2 raised to power n, 2 raised to power 3 is 8. Because for 3 variable, let us assume that 3 variable are a, b and c. So from 0, 0, 0 to 1, 1, 1, there are 8 different combinations. This is 2 raised to power 3. Okay, so we have minterm m0, m1 up to m7. 8 different minterms will be present. So the minterms are arranged so that only one variable changes from 0 to 1 or from 1 to 0. ठीक है, ये कोड ध्यान से पढ़ो. The minterms are arranged. तो जब आप k map बनाओगे, ओके, तो k map कैसे होगा? इस तरह से कुछ k map होगा. There are 8 different possibilities, so there will be 8 different cells. So 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So if we have 3 different variables, so I will write a, जो most significant है, that I will write here, that I will allot to the columns. A can have different values like 0 and 1, and this will be allocated. This can have 4 different values. अगर आप left to right चलोगे, so this can have 4 different values. Column 1, column 2, column 3, column 4. 4 different options are there. So बी सी मुझे अलॉट करना है. सो बी और सी की 4 डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ये मैंने सीक्वेंस में लिखा है 0, 1, 2, 3. ओके, बट के मैप का रूल क्या कहता है कि यू हैव टू अरेंज मिनटर्म्स. दिस मिनटर्म्स आर अरेंज सो दैट ओनली वन वेरिएबल शुड चेंज फ्रॉम 0 to 1. तो अगर मैं यहाँ 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 रखता हूं, तो ये जो सेल है यहाँ पे 2 वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं. ये 0, 1 में चेंज हो रहा है, 1, 0 में चेंज हो रहा है. तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनवैलिड है. ठीक है, तो हमें इस तरह से नहीं रखना है. तो ग्रे कोड की डेफिनेशन याद करो. जब हम सीक्वेंस में नीचे जाते हैं, सीक्वेंस में काउंट करते हैं, तो सिर्फ एक ही बिट चेंज होता है. तो वो ग्रे कोड हमें यूज करना है. वो भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. ठीक है, हमेशा हम यूज करेंगे 0, 0, 0, 1. यहाँ पे 1, 0 की जगह 1, 1. And then
1 0। तो ये चीज ध्यान रखना 8 वेरिएबल्स में 0 0 0 1 1 1। अब देखो एक ही वेरिएबल चेंज हो रहा है और तभी ये दोनों सेल एडजेसेंट कहलाएंगे 0 1 1 1। सो दिस C is not changing, B is changing from 0 to 1. Okay, फिर 1 1 1 0. So in this B is not changing, C is changing from 1 to 0. So 0 to 1 change और 1 to 0 सिर्फ 1 वेरिएबल चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अरेंज करना है, यहाँ गड़बड़ मत कर देना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अब मिन टर्म्स, कौन सा सेल किस मिन टर्म को बिलोंग करता है? सो 0 0 0 बिलोंग्स टू M0, दिस बिलोंग्स टू M1, 0 1 1 0 1 1 is 2 plus this is 3, this is M3 and 0 1 0 is M2। तो ये चेंज आ गया 0 1 2 3। this 1 0 0 is M4, 1 0 1 is M5, 1 1 1 is M7 and 1 1 0 is M6। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज है। सो बेसिकली वी आर यूजिंग ग्रे कोड। यहाँ पर आपको ग्रे कोड के इंट्रो में बताया भी था कि दिस इज यूज्ड इन के मैप सिंप्लीफिकेशन। सो ये हम ग्रे कोड फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ के मैप देयर शुड बी ओनली 1 बिट चेंज। अगर मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ डिफरेंट सेल्स के बीच में तो देयर शुड बी 1 बिट चेंज। ठीक है, सो वही चीज, वही कॉन्सेप्ट होता है ग्रे कोड का एंड वी आर फॉलोइंग दैट ग्रे कोड। तो इस तरह से सेल बनाना है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल। ठीक है, देन फॉर एनी टू एडजेसेंट स्क्वायर वन लिटरल चेंज फ्रॉम कॉम्प्लीमेंटेड टू नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फ्रॉम, ये तो वही चीज है, सेम चीज को दूसरे लैंग्वेज में लिखा है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट के मैप लाइक दिस। सपोज वी हैव 3 वेरिएबल x y z। सो x MSB को मैंने यहाँ लिखा, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, yz की वैल्यू 0 0 0 1 1 1 1 0, मिन टर्म M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7। ठीक है, अब एडजेसेंट सेल, इसमें एडजेसेंट सेल कौन कौन से होंगे? एडजेसेंट सेल की डेफिनेशन क्या कहती है कि वो दो सेल्स एडजेसेंट है जिसमें सिर्फ 1 वेरिएबल ही चेंज हो रहा है। सो अगर मैं इस सेल में देखूं तो x तो 0 है, x फिक्स है, z चेंज हो रहा है 0 से 1। सो दिस 2 सेल्स आर एडजेसेंट। ठीक है, ये भी एडजेसेंट है, इसमें x चेंज हो रहा है 0 से 1, yz कॉमन है। देन ये दो भी एडजेसेंट है, इस तरह से ये दोनों भी एडजेसेंट है, 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 ये दोनों भी एडजेसेंट है। सो जो हॉरिजॉन्टली जो सेल आसपास है वो तो एडजेसेंट है ही, वर्टिकल वाले भी एडजेसेंट। डायगोनल वाले कभी नहीं होंगे, डायगोनल वाले आप ऐसे ग्रुप कभी नहीं बना सकते। इसके अलावा नोट करने वाली बात एक और चीज है कि ये जो कॉर्नर्स वाले सेल है, यहां देखो द वैल्यू ऑफ x इज 0, yz is 0 0, here yz is 1 0. So this 2 cells are also adjacent. This corner 2 cells are also adjacent. तो तभी इसको सिलेंडर के फॉर्म में बना रखा है। सिलेंडर के फॉर्म में बनाया तो क्या हो गया कि ये दोनों कॉर्नर्स आपस में ज्वाइन हो गए। M2 is joined with M0, 0 is joined with 2, 4 is joined with 6। तो ये हो गया एडजेसेंट सेल। तो ये कॉर्नर वाले जो है एक्सट्रीम कॉर्नर्स, ये भी एडजेसेंट है। ओके, सो अब इसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले जितने ज्यादा एग्जांपल करेंगे हम उतनी ज्यादा इस चीज की क्लियरिटी आपको बढ़ेगी। तो मैं जितने कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल मैं करवा सकूं, जितने भी पॉसिबिलिटीज है, तब आपको क्लियर होगा कि हाँ एडजेसेंट सेल क्या होता है, कैसे हमें उसको ग्रुप करना होता है और क्या क्या एडजेसेंट सेल्स की पॉसिबिलिटीज होती है। सो अब सिंप्लीफाई कैसे करना है, ये तो पॉइंट्स है, पॉइंट्स पढ़ने के बाद हम सीधे एग्जांपल पे आएंगे। ओके, सो 1 स्क्वायर, जो हमारे के मैप में 1 स्क्वायर है, दैट रिप्रेजेंट्स अ मिन टर्म ऑफ 3 लिटरल्स। तो जैसे दिस स्क्वायर रिप्रेजेंट्स x बार, y बार, z बार। दिस स्क्वायर रिप्रेजेंट मिन टर्म m1 विथ वैल्यू x बार, y बार, z, लाइक दिस। A rectangle of 2 adjacent square represents a product of 2 literals. तो अगर आप दो स्क्वायर को कंबाइन करते हो, सो दिस एक स्क्वायर
में एक्स वाई जेड तीनों लिटरल्स होंगे। अगर आप कंबाइन करते हो तो ये देखो एडजेसेंट सेल, अगर हम दो वंस को ग्रुप कर रहे हैं तो इस तरह से ग्रुप कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली इस तरह से ग्रुप कर सकते हैं, वर्टिकली इस तरह से ग्रुप कर सकते हैं, और कॉर्नर, अगर कॉर्नर वाले ग्रुप होते हैं तो हम इस तरह से ग्रुप, कॉर्नर वाली ग्रुपिंग इस तरह से बताई जाती है। तो इसमें इसकी इससे जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी हैविंग टू वेरिएबल्स। ठीक है, एक वेरिएबल सिंप्लीफाइड हो गया, हमने दो सेल्स को ग्रुप किया तो एक वेरिएबल सिंप्लीफाइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज a rectangle of 4 squares represent a product terms of one literal। अब अगर आप और ग्रुपिंग्स और इंक्रीज करते हो, अगर और ग्रुपिंग्स इंक्रीज होती है, अगर 4 स्क्वायर इंक्रीज होते हैं, सो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। ठीक है, 1 2 3 4 ये एडजेसेंट सेल है। कॉर्नर्स की बात करें तो दीज आर एडजेसेंट्स। तो इस तरह के होते, तो ये जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी हैविंग ओनली वन वेरिएबल। ओके, एंड रेक्टेंगल ऑफ 8 स्क्वायर, कभी मान लो ये केस हो गया जो कि शायद ही कभी होगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 सब में 1 है, सब ग्रुप हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपका फंक्शन की वैल्यू हमेशा ही f ऑफ एक्स वाई जेड इज ऑलवेज 1। तो एक्स वाई जेड पे तो वो डिपेंड ही नहीं करेगा। मतलब अगर आप 8 सेल्स को ग्रुप करोगे इन 3 वेरिएबल के मैप, सो नो वेरिएबल विल बी प्रेजेंट एंड द आंसर विल बी सिंपली 1। ठीक है, तो हमेशा ज्यादा स्क्वायर को ग्रुप करने की कोशिश करना है, कम से स्टार्ट नहीं करना है। 8 तो पॉसिबिलिटी होगी नहीं, 8 हो गया तो कुछ सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगा ही नहीं, फंक्शन इज ऑलवेज 1, डायरेक्ट बैटरी से ही कनेक्ट कर दो उसको। पहले कोशिश करना कि 4 स्क्वायर ग्रुप हो सकते हैं क्या। ठीक है, नहीं हो सकते तो 2 की कोशिश करना। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी होगी कि एक जगह 4 स्क्वायर ग्रुप हो गया और दूसरा जो पेयर बना वो 2 वंस का बना, और कोई ग्रुप नहीं हो रहा, तो सिंपल उसके लिए जो भी मिनटर्म है उसकी वैल्यू एज इट इज लिख देना, लाइक दिस। तो ये सारे जो रूल्स जो हमने पढ़े हैं ये इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करके, दैट विल बी बेटर अंडरस्टूड बाय सॉल्विंग सम एग्जाम्पल्स। और जो आप कहोगे यहाँ पे हम फंक्शन लेके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, फिर एडो पेन पे जो आप मुझे फंक्शन बताओगे मैं उसको सॉल्व करूंगा। सो एग्जाम्पल f of a comma b comma c, so this is depending on 3 variables a comma b comma c. The expression is a bar c plus abc plus bc bar। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, सो यू कैन सी दैट ये कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले तो इसको कैनोनिकल फॉर्म में करना होगा हमें। तो इस टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस टर्म इज परफेक्ट। ए बार सी, इस टर्म में क्या मिसिंग है, b is missing, so we will write b plus b bar and we have a bar cb plus a bar c b bar। अब ऐसा लिखने के बाद ये इंश्योर करना है कि जो ऑर्डर दे रखा है a b एंड c आपको उसी ऑर्डर में लिखना है, अदरवाइज इसको आप गलत मिन टर्म इंटरप्रेट कर लोगे। सो यू हैव टू राइट इट इन दिस वे, फर्स्ट a then b then c plus a bar b bar c। Similarly for this BC bar, you can add a plus a bar BC, so this is a BC plus a bar BC। Okay, so ABC and ABC are common, so I can ignore it from this term, and a bar BC, सर लास्ट की दोनों टर्म में सी बार, किसमें लास्ट जो दो लिखे आपने ए बार बी सी एंड ए बार बी बार सी, नहीं कुछ गलत किया या क्या, बी सी बार में आपने ए ये बार सी ऐड बार, किया ना? सॉरी ये सी बार है, राइट या, so it will be a b c bar plus a bar b c bar। अब कॉमन कुछ है क्या, a बार a b c बार, so नहीं कुछ कॉमन एज सच नहीं दिख रहा है। सो हमारा जो एक्सप्रेशन है f a b c दैट इज a बार b c प्लस
A bar, B bar, C. Then this A, B, C plus this A, B, C bar plus A bar, B, C bar. So we have 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 है. So min terms, this will be 0, 1, 1. This is min term M3. This is 0, 0, 1, min term M1. This is 1, 1, 1, min term M7. This is 1, 1, 0, min term M6. And this is 0, 1, 0, min term M2. So f of a, b, c. मैं अगर सीक्वेंस में लिखूं सो समेशन m1 then 2 3 1 2 3 6 7 6 7. ओके, तो ये मेरे मिन टर्म्स पता चल गए. हाँ, हर जैसे मैंने यहाँ पे इतना एक्सपांड किया है तो आपको हर बार इतनी एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ए बार सी है, सो बी प्लस बी बार, अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो जैसे दिस द वैल्यू ऑफ ए इज 0 1, द वैल्यू ऑफ बी सी विल बी 0 0 0 1 1 1 1 0. तो ये बन गया हमारा के मैप और हमने वैल्यूज डाल दी. सो फॉर एग्जाम्पल ए बार सी, सो ए बार मतलब 0 और सी मतलब 1. ठीक है, तो C1 कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर है. ठीक है, और आपने क्या ऐड किया? B प्लस बी बार. सो दिस इज B, दिस इज बी बार. तो सिंपल यहाँ दोनों जगह, इस टर्म के लिए यहाँ दोनों जगह 1 एंटर कर दो. तो आप देखो, दिस इज मिन टर्म, ये है मिन टर्म अपना 0. नो दिस इज 1 3 एंड दिस इज 3. सो दिस इज 0 1 2 3. ठीक है, काउंटिंग में फिर ध्यान रखना 0 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, जल्दी जल्दी में ये मत कर देना 0 1 2 3, ऐसा नहीं. 0 1 2 3, बीच में पॉज लेना है, फिर 2 3 4 5, फिर पॉज 6 7, लाइक दिस. ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए इतनी लंबी प्रोसेस लिखी थी, बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ए बार सी मतलब A0 C1. तो हम इसमें B और B बार ही तो ऐड करेंगे, तो यहाँ सिंपल 1 एंटर कर दो. उसी तरह B एंड C बार, सो B मतलब 1 एंड C बार मतलब 0, सो 1 0. तो A और A बार ऐड करोगे तो सिंपल इस दो जगह 1 एंटर कर दो. तो ये आप देख सकते हैं कि दिस इज 1 1 0, दिस इज M6 एंड दिस इज 0 1 0, दिस इज M5. तो 4 5 6, दिस इज M6 एंड दिस इज 5 4, सॉरी नहीं, 0 1 2 3 4 5 5 नहीं आएगा, 0 1 0, क्या गड़बड़ हो, नहीं 6 0, दिस इज सॉरी 3, हाँ ये 3 है, सॉरी 3. तो 0 1, 2 आ गया. हाँ सॉरी यार 2 है, 0 1 2. ठीक है, तो एक 1 एंटर यहाँ कर दो एंड दिस इज 6 M6 4 5 6, तो एक 6 एंटर यहाँ कर दो. ठीक है, इस एग्जाम्पल के बाद मैं एडुपेन खोल लूंगा तो वहां पे स्पेस काफी होगी, सब चीज प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक लिखी होगी. पीपीटी में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है स्पेस की. ओके ओके, तो हमने 1 एंटर कर दिए. कितने? 1 2 3 6 7. सो 1 2 3, दिस इज 6, दिस इज 7. सो M1 M2 1 2 M3 4 5, this is M6 and this is M7. ठीक है, like this. अब आपको क्या करना है? ग्रुपिंग करना है. ठीक है, तो सेम यहाँ पे दोबारा यही सेम यहाँ पे रेप्लिकेट हुआ है. सो 8 सेल्स कैन नॉट बी ग्रुप्ड. ठीक है, रेयरेस्ट केस होगा वो, 8 सेल कैन नॉट बी ग्रुप्ड. देन लुक फॉर 4. ओके, सो 1 2 3 4 ये आसपास है. So you can make group of this 4 cells. तो ये 4 सेल डायरेक्टली कंज्यूम हो गए. अब इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा? सो A की वैल्यू जो है वो है 0 1, B एंड C आर 0 0 0 1 1 1 1 0.
तो जो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, आपको तीनों वेरिएबल ध्यान से एक्सप्लोर करना है और देखना है कि कौन सी वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो ए को देखते हैं। अगर मैं इस पूरे सेल को कंसीडर करूं, सो इस रो के लिए ए 0 है, इस रो के लिए ए 1 है, तो ए तो चेंज हो रहा है, ए नहीं आएगा। बी, यहाँ पे भी 1 है, 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 तो इस 4 सेल के लिए बी की वैल्यू 1 है, बी चेंज नहीं हो रहा है। एंड सी, यहाँ पर 1 है, इस रो के लिए 1 है, रो जैसे ही चेंज की, कॉलम जैसे इस कॉलम के लिए 1 है, इस कॉलम में 0 हो गया। सो ए इज ऑल्सो चेंजिंग, बी इज ऑल्सो चेंजिंग। तो ए प्लस ए बार एंड सी प्लस सी बार ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ए प्लस ए बार जो मैंने इंटेंशनली यहाँ डाला था, बी प्लस बी बार एंड देन दिस ए प्लस ए बार, ये अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो बचेगा क्या? सिर्फ सी बचेगा, सॉरी बी बी बचेगा। बचेगी सर। तो यू हैव टू जस्ट राइट बी हियर, दैट्स इट। फिर कौन सा वन लेफ्ट आउट है? देखो ये वाला बचा है। सो ये 4 का पेयर तो बन नहीं सकता यहाँ पे। ओके, सो दिस टू आर एडजेसेंट सेल, हॉरिजॉन्टली एडजेसेंट या वर्टिकली एडजेसेंट, डायगोनली कभी नहीं होगा। सो या उसके अगर हॉरिजॉन्टल, नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल सेल में आसपास कहीं 1 है या नीचे कहीं 1 है, सो यू कैन सिंपली ग्रुप इट। सो सेकेंड ग्रुप जो है इसका बनेगा। फिर से उसमें देखना है कि कौन सा वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है। सो ए तो यहाँ पे क्लियर है कि इस सेल के लिए ए की वैल्यू फिक्स है, दैट इज 0। सो राइट ए बार, देन चेक फॉर बी, बी इज चेंजिंग फ्रॉम 0 एंड देन 1, मतलब ये बी प्लस बी बार, ये हमने बी प्लस बी बार जो इंटेंशनली ऐड किया था उसकी वजह से यहाँ 1 1 एंटर हुए, तो बी भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। चेक फॉर सी, सो सी इज 1 1, c is not changing and its value is 1, so a bar dot c, so this is the final expression, a bar dot c plus b। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो अब जितने पॉसिबल, जो भी हमारा जो लिमिट अभी जितना टाइम बचा है उसमें जितने भी पॉसिबल एग्जाम्पल्स हम कर सकते हैं वो करेंगे। तो मैं अपना वर्चुअल बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। तो 3 वेरिएबल वाला जो भी है क्लियर हो जाएगा आज। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। Okay, so can you see the blackboard? Yes, sir. 3 variable K-map. Okay, अब आपको याद होगा एक फुल एडर वाला, फुल एडर हमने किया था और उसका एक्सप्रेशन मैंने डायरेक्टली लिखा था वहां पे। ठीक है, तो 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1, this will be 1 1 1 1। फुल एडर हम वैसे तो पढ़ेंगे ही, बट क्योंकि आप सबको वैसे भी उसका ट्रुथ टेबल पता है तो इसलिए मैंने उसको यहाँ ले लिया, बट अदरवाइज हम उसको दोबारा से कंसीडर करेंगे जब आगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़ेंगे। सो फुल एडर का कॉन्सेप्ट सबको पता है कि जब whenever 2 1 even ones is present, so we have the value, the carry will be generated, so carry will be 1 and sum is 0, and if odd number of 1 is present, so sum is 1 and carry is 0, so 0 0, odd number of 1 1 0 1 0, this is 1 0, this is 0 1 0 1, and for the last case it is 1 1। so sum के लिए जो एक्सप्रेशन लिखा था that was a XOR b XOR c, वहां डायरेक्टली लिख दिया था। ठीक है, अब के मैप से देखते हैं कि ये कैसे प्रूव होगा। तो इस तरह के एक्सप्रेशन बड़े जब 3 वेरिएबल्स हो तो इसके लिए के मैप इज वेरी हेल्पफुल टू डिराइव द एक्सप्रेशन। सो फर्स्ट वी विल फॉर्म द के मैप। सो दिस इज a, the value of a is 0 and then 1, and then b and c, so value is 0 0 0 1 1 1 1 0, and you can
write here that this is M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7। भाई इस तरह से लिख लोगे तो गलती के चांसेस कम होंगे, हार्डली सेकंड्स लगे लिखने में। सो वी विल डिराइव फॉर सम, हर आउटपुट के लिए अलग अलग की मैप बनाना पड़ेगा। सो फॉर सम द मिन टर्म इंक्लूडेड आर, दिस इज M1, M2, 1, 2, 4 and 7. M4, 4 and 7. 7, right? So what we will do, we will enter 1 here in M1, then M2, M4, M7. Okay. So यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है ग्रुप बनने की? देखो कोई एडजेसेंट सेल ऐसा नहीं है यहाँ पे 1 एंटर हो। ये डायगोनल हम नहीं कर सकते, अगर यहाँ कॉर्नर में होता तो हम उसको कर सकते थे, ठीक है, कैरी में देखेंगे वो। यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो अब क्या करना है इस केस में, इसकी जो भी वैल्यू है M1 मींस A बार B बार C। सो M1 के लिए A बार B बार एंड C प्लस दिस, इसके लिए A बार B C बार प्लस इसके लिए A B बार C बार, and then for this we have A B C। so try करना, ठीक है, this is for you as an exercise। so this is nothing but A XORed with B XORed with C। so what you can do, you can first XOR A and B, then the result can be XORed with C। so this is AB bar plus A bar B XORed with C। so you can consider it as X and then C। so it is X C bar plus X bar C। तो यहाँ पे डी मॉर्गन्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, एंड डी मॉर्गन्स लगा के एक्सप्रेशन को एक्सपांड करना। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस भी करोगे इस तरह से। so this expression is going out to be this one, ठीक है। then for carry we have min term 0 1 2 3 5 6 7। so for carry we have summation M 3 5 6 7 0 1 2 3 5। ओके, कैरी के लिए अलग के मैप बनाना पड़ेगा आपको। so input variables are A and B and C, 0 0 0 1 1 1 1 0। so 0 1 2 3, this is third one, so enter 1 4 5 6 7। so 4 min terms are there, 4 ones are entered। okay, now 4 groups, 4 adjacent ones are not present। okay, so we cannot group। 3 को ग्रुप नहीं करना है, यहाँ पे 3 जो है तो आसपास, बट 3 को ग्रुप नहीं करना है, आइदर 8 4 2 या तो फिर सिंगल। तो मैं एक एक ग्रुप बनाता हूं और उसके एक्सप्रेशन लिखता हूं। सो दिस 2 आर एडजेसेंट, सो दिस इज ग्रुप 1, this 2 is also adjacent, this is group 2। तो ये 1 दोनों में कॉमन है, एंड इस 1 को भी हम, इस 1 इन दोनों को हम पेयर कर सकते हैं। so this is group 3। so the expression of carry will be expression for group 1 plus expression for group 2 plus expression for group 3। तो 1 के लिए हम देखें क्या होगा। A is constant, so write A। B is also fixed, B, the value of B is 1, so write B। C is 1 and 0, don't write C, plus, and for group 2 A is constant, so write A।
B is changing, don't write B. C is 1, so write C. AB plus AC. Then for group 3, A is changing, A is 0 and A is 1. What is constant? B and C, 1, 1. So write BC. So this is the expression for carry. AB plus AC plus BC or AB plus BC plus CA. सीक्वेंस में ज्यादा रीडेबल बनाने के लिए इसको AB plus BC plus CA इस फॉर्म में लिख सकते हैं. Both are same. So this is how the expression of carry was derived. Okay, तो और बताओ और क्या डिराइव करना है x y z. सर एक बार एक्सप्रेशन बता दोगे कैसे ड्राइव करना है? हाँ वही कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शंस ले लेके करते रहेंगे हम तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. जैसे ये सम के लिए हमने किया, कैरी के लिए किया. अब जैसे मैं एक सेल बनाता हूँ, 3 वेरिएबल्स के मैप सेल बनाता हूँ एंड कॉर्नर्स को इंक्लूड करके देखते हैं. सो x y z 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 and this is min term m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7. तो अभी let us take summation min term 0 min term 2 min term 3 0 2 3 0 7 एक और नीचे बना लेंगे. अभी 2 को पेयर करके देखते हैं. ठीक है, तो 0 2 1 0 2 3 लिया. सो 0 2 3 5 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर वी कैन टेक 5 एज वेल. ओके, सो 4 एडजेसेंट 1 आर नॉट प्रेजेंट. ओके, तो 2 के ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे अब. सो इस 2 का ग्रुप बन सकता है. तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन होगा, x इज नॉट चेंजिंग x बार, y इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग y, z इज चेंजिंग. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है. तो इस ग्रुप के लिए एक्सप्रेशन आएगा x बार y. ठीक है, ये वाला जो 1 है इसके नीचे जो डाउनवर्ड जो सेल है ये एक एडजेसेंट है, यहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं है. इसके राइट साइड में जो सेल है ये इसके एडजेसेंट है, यहाँ कोई प्रेजेंट नहीं है. और जो कॉर्नर है ये भी इसका एडजेसेंट है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 0 है, यहाँ पे 1 0 है. सो देयर इज ओनली 1 बिट चेंज. ठीक है, तो अब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में याद हो ही जाएगा कि हाँ भाई कॉर्नर वाले भी एडजेसेंट होते हैं. तो कॉर्नर वाले को इस तरह से ग्रुप करते हैं, ऐसे ऐसे. तो ये 1 दोबारा से रीग्रुप हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इन दोनों को भी हम ग्रुप कर सकते हैं. और इसके लिए जो एक्सप्रेशन होगा, अगेन x इज 0, सो x बार, Z bar. yeah, y is changing, so y is ignore y, z is 0 0, so z bar. ये 1 किसी से ग्रुप नहीं होगा, ना इसके ऊपर है, ना लेफ्ट में है, ना राइट में है, ना तो डायगोनल तो हम कर नहीं सकते. सो इसके लिए जो भी एक्सप्रेशन है x y bar z as it is लिखो. सो f1, the simplified form of x1 is x bar z bar plus this is x bar y plus x y bar z. ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब कॉर्नर्स में अगर 4 इंक्लूड है तो उसको कैसे ग्रुप करना है वो एग्जांपल ले लेते हैं. इसमें कोई डाउट? क्लियर है ये? ठीक है, सो अब हम 4 अगर कॉर्नर्स में प्रेजेंट है तब क्या करेंगे, x y z. सर एक प्रीवियस क्वेश्चन शो करना. हाँ जी, हेलो. इसमें x बार z बार और y बार क्यों नहीं है? कहाँ पर, किस टर्म में? जो लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन, ये लेफ्ट साइड. ये यस सर. x क्या है? 0.
ये जो वाला जो ना फर्स्ट वाला जो ग्रीन में जो ग्रुप्ड है उसके लिए मुझे एक्सप्रेशन लिखना है। एक्स की वैल्यू 0 है तो उसको 0 को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, y की वैल्यू 1 और 0 है, ये मैं बहुत बार समझा चुका हूँ कि ये y प्लस वाई बार बनेगा। ठीक है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया है या लेक्चर मिस किया है तो प्लीज सी प्रीवियस 2 रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ठीक है, और z की वैल्यू जो है नहीं सॉरी, ये इसकी बात कर, हाँ y की वैल्यू जो है वो 1 है, सो यू वी विल राइट y। अच्छा वैसे तुम इसका पूछ रहे थे, x की वैल्यू 0 है x बार, एंड z की वैल्यू भी 0 है तो z बार। ठीक है, सो एक और एग्जांपल हो जाएगा जितना भी लिमिटेड टाइम है। सो 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 एंड वी हैव मोमेंटम m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7. So let us take momentum 0 2 4 6 and we can also take, let us take 3. So 0 2 3 4 6. सो 8 का तो पॉसिबल होगा भी नहीं। 4 का देखो तो आप देख सकते हैं कि ये कॉर्नर्स में 4 1 है, तो ये सारे एडजेसेंट होंगे। ठीक है, सो यू कैन ग्रुप देम एंड एक्सप्रेशन फॉर दिस, x is 0 x is 1, डोंट कंसिडर x, y is 0 y is 1। ठीक है, इस कॉलम में y is 0, इस कॉलम में y is 1, don't consider y also. z is 0 in this column, z is 0, and in this column z is also again 0. so सिर्फ z की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही है। x इस रो के लिए 0 है, इस रो में 2 1 है, और नेक्स्ट रो में भी 2 1 है, उसके लिए x 1 है। सो यू डोंट हैव टू कंसिडर दैट, वो x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। देन y is 0 in this column and y is 1, so वो भी y प्लस वाई बार में कन्वर्ट हो जाएगा। z is 0, z is 0, मतलब सबसे कॉमन क्या निकलेगा, z, जिसकी वैल्यू है 0, so you have to write z bar. And this one, for this one you can group it in this way. इसके लिए जो एक्सप्रेशन लिखोगे, so x is common because this belongs to the row for which x is 0, so x bar, y is 1 dot y, z is 1 and z is 0, so you don't have to write z. So f1, the simplified expression will be x bar y plus z bar. ठीक है, और इसमें कौन और बताओ, और क्या लूँ मैं, जो आप कहोगे मैं वो ले लूंगा। और कहाँ कहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे होगा तो पेयरिंग कैसे होगी, आप बताओगे, मैं 1 एंटर करके बता दूंगा, ऐसे पेयरिंग कर सकते हैं हम। सर M1 M3 M5 M7 अगर 1 1 1 होंगे तो उसका क्या आएगा? M1 M3 M5 M7। यस, अच्छा अच्छा, गुड। सेंटर में अगर आता है सो दिस टू आर एडजेसेंट, जस्ट राइट या लेफ्ट एक्सट्रीम, एकदम एडजेसेंट राइट या लेफ्ट या टॉप या बॉटम पे हो तो दिस विल बी कंसिडर एज एडजेसेंट सेल, सो you can group them. So 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1, so x 0 है और इस रो के लिए x 1 है, x नहीं लिखना है। y 0 है, सॉरी z आ जाएगा, z आ जाएगा, तो इसके लिए सिंपल आ जाएगा z। ठीक है, जो मुझसे पूछ रहा था कि भाई z क्यों नहीं लिया है, क्योंकि ये अगर दोनों 1 का मैं इंडिविजुअल एक्सप्रेशन लिखता हूँ, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, हमारे पास 1-2 मिनट बचा है, तो अगर मैं इस 1 के लिए एक्सप्रेशन लिखूंगा, सिर्फ इस 1 के लिए, तो जो एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी x बार
वाई जेड, और इस 1 के लिए एक्सप्रेशन लिखूंगा मैं तो वो होगा प्लस करके लिखूंगा, दैट विल बी x बार y z बार। वाई जेड बार। तो इसमें अगर आप देखोगे तो x बार y कॉमन है, ठीक है। सो नहीं, हाँ, x बार y कॉमन है और ब्रैकेट में z प्लस z बार। तो इसलिए हम ढूंढते हैं कि कौन सी वैल्यू फिक्स है। तो इस सेल की अगर मैं बात करूं तो x बार x 0 है, ये चेंज नहीं हो रहा है, एंड y की वैल्यू 1 है, वो चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, z, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। तो अगर हम इसको ग्रुप करेंगे मतलब x बार y को कॉमन निकालेंगे, सो x बार y ही रह जाएगा, z प्लस z बार विल बिकम 1। तो K-मैप ने यही सब देखते हुए कहा है कि भाई सेल को ग्रुप करो और जो चेंज नहीं हो रहा है वेरिएबल उसको लिखो, दैट्स इट। ओके, सो अब आप एग्जाम्पल अपने मन से बना के ट्राई कीजिए, गूगल करिए, बुक देखिए, जो भी आपको एग्जाम्पल मिलता है आप कोशिश करिए मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की। एंड कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास के लिए रखिए। इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग 2 raised to power 4, that is 16 वेरिएबल की मैप, जिसमें 4 वेरिएबल्स होंगे a b c d x y z w लाइक दिस। तो 3 वेरिएबल्स तक की प्रैक्टिस पूरी कर लीजिए। एंड नेक्स्ट क्लास विल बी आफ्टर वेकेशन, सो सी यू आफ्टर वेकेशन, एंजॉय योर वेकेशन। Happy New Year, sir. थैंक यू, Happy New Year. Yes, sir. थैंक यू, सेम टू यू, Happy New Year, sir. विश यू ऑल Happy New Year, sir. थैंक यू, Thank Merry you, sir. Christmas. Thank you, sir. मेरी क्रिसमस टू यू। Happy New Year, sir. Marigold biscuit. Thank you, sir. Go Corona, go.